رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا، یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، ہو جائے مشکل آسان سب، چاہے جو تو میرے خدا، چاہے جو تو میرے خدا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، ہو جائے مشکل آسان سب، چاہے جو تو میرے خدا، چاہے جو تو بڑے بھائی میرے خدا، حضرت روڈ پار کرا دیں گے؟ اللہ یا اللہ یا اللہ، ماشاءاللہ روڈ پار کرا دیں۔ اللہ پیارے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا روڈ پار کرا دیا ماشاءاللہ۔ نام تو بتا دیں کہاں لے آئے مجھے؟ پیارے بھائی کہاں لے آئے؟ نام تو بتا دیں پیارے بھائی۔ ماشاءاللہ دو بھائیوں نے روڈ پار کرا دیا، نام نہیں بتا کے گئے، کہاں چلے گئے؟ ارے پیارے بھائی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، نام نہیں بتایا۔ جا رہے ہیں، نام تو بتاتے ہیں۔ ارے چلے گئے، نام نہیں بتا کے کہاں چھوڑ گئے مجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو پیارے اسلامی بھائی مجھے چھوڑ گئے، نام بھی نہیں بتایا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اچھا جی وہ کچھ آپ کا نام؟ میرا نام عبد الحبیب ہے، اور یہ دو بھی بھائی ادھر ہی ہیں۔ ادھر آنا بیٹا، ادھر آنا، ادھر ہی ہے، ادھر آ رہے ہیں۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ اچھا یہ بول نہیں سکتے اور یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا فیضان بھائی ذرا آئیے بھائی، یہ تھوڑا معاملہ آپ نے حل کرنا پڑے گا، یہ ان کو اشاروں کی زبان میں کچھ بات کرنی پڑے گی۔ ہماری مجلس خصوصی اسلام ہے کہ اسلام میں آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا یہ بھائی طالباً دیکھ نہیں سکتے اور یہ انڈے لے کر آئے ہیں، اور یہ دو ان کو روڈ پار کرا رہے تھے۔ ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہاں ہم ہوٹل پہ، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک نابینا اسلام پہ آئے ہیں اور گاڑی ان کو روڈ پار کرنا ہے، تو ہم نے ان کو روڈ پار کروا دیا۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ تو بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن یہ آپ کا ذہن کیسے بنا؟ آپ نے کیوں ان کو روڈ پار کرایا؟ الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے افطار اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں امیر سنت کی، اور ایک حدیث مبارک بھی ہم نے وہاں سنی کہ نابینا کو جو 40 قدم چلاتا ہے تو اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ اس نیت کے ساتھ یہ کیا۔ دیکھیں یہ پیارے بھائی کتنے اچھے دو بھائی ہیں جو بول نہیں سکتے، مگر انہوں نے آپ کو روڈ پار کرایا اور یہ فضیلت حاصل کی۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے مدینہ دکھائے۔ آمین 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 ماشاءاللہ۔ عبدالحبیب بھائی بڑا مجھے شوق تھا آپ سے ملنے کا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بڑی خوشی ہوئی انہوں نے یہاں تک چھوڑا مجھے۔ چلے ماشاءاللہ۔ اب یہ بتائیں اس میں ہے کیا، کیا بیچ رہے ہیں آپ؟
अंडे बेच रहा हूँ, गरम अंडे होते हैं ना अब्दुल हबीब भाई, हाँ हाँ, वो बेचता कितने हूँ। कितने का एक देते हैं? ये 35 रुपए का एक देता हूँ, 70 के दो। 70 के दो। अच्छा, ये जी। कितने अंडे इसमें? इसमें अंडे बचे 6-7 होंगे तकरीबन। अरे वाह, 6-7 अंडे हैं। जी हाँ यार, वाकई अंडे हैं। कितने का एक बताया? 35 रुपए का। तो मैं जी, ले लूँ, जी। ये खरीद लूँ? जी मैं खरीद लूँ या मुझे दे देंगे? जी जी बिल्कुल। 7 अंडे, चलो 7 अंडों के पैसे अभी देते हैं आपको, ये आप मुझे दे दें। ये ऐसा करें फैजान भाई, सब बच्चों को एक एक अंडा दे दें, एक मेरे लिए भी रखें। अच्छा, अब ये तो आपके अंडे हमने ले लिए, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि पहले मैं आपको पैसे दे देता हूँ, ये मुझे बताएं कि ये आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि जो है वो अंडे बेच रहे हैं? नॉर्मली लोग नाबीना हो जाते हैं तो वो हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं, मदद मांगना शुरू कर देते हैं, तो इसकी क्या वजह बनी? अब्दुल हबीब भाई, मेरा जो है वो यही है कि शुरू से ज़हन यही है कि मैं जो हूँ अपने हाथ से कमा के खाने का मेरा ज़हन बना हुआ है। माँ बाप की भी, वालिदैन की भी तरबियत यही है, और मैं मदनी माहौल से भी वाबस्ता हूँ, इज्तिमात में आना जाना होता है। अरे वाह। तो वहाँ से भी यही ज़हन मिला है कि जो है वो खुद कमा के खाना है, मांग के नहीं खाना। इसी हवाले से एक हदीस पाक भी है अब्दुल हबीब भाई, जी जी, कि जिस शख्स ने जो है वो माल बढ़ाने के लिए मांगा, उसने जो है वो अंगारा मांगा, अब चाहे ज्यादा करे या कम। चलें जनाब, ये बहुत ज़बरदस्त तरबियत है। नाजरीन, मैं एक सिलसिला मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर, बहुत सारे नाजरीन उम्मीद है देखा होगा, कि जिसमें हमने हमदर्दी सिलसिले में बहुत सारे इस तरह के स्पेशल इस्लामी भाइयों के हम घर पर गए, और मैंने देखा कि किसी के पैर नहीं थे, किसी की आंखें नहीं थी, कोई किस तरह की प्रॉब्लम में था, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, वो जाके अपना कारोबार करते थे। मैंने आलू की रेडी लगाते हुए भी लोगों को देखा, रिक्शा चलाते हुए देखा, जरा क्या कहते हैं उसको, लेडीज कपड़ों का काम करते हुए देखा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से किसी के आगे इन्होंने हाथ नहीं फैलाया। तो जनाब, ये आपके अंडे के भी पैसे हैं और ये आप रखिएगा। लेकिन यहाँ मैं एक और बात, मैं 2-3 बातें अर्ज करूंगा इंशाल्लाह, कि एक हमारा बड़ा मसला क्या है कि हम जब किसी गरीब से फ्रूट लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, अब उससे इतने पैसे कम करवाते हैं कि जनाब और कम कर दो, और कम कर दो। हालांकि हमें पता है कि ये थोड़े से पैसे हमें शायद कोई असर नहीं डालेंगे, लेकिन उस बेचारे के घर में एक अच्छी रकम पहुंच जाएगी। और यही फ्रूट वाले से, सब्जी वाले से, या किसी गरीब आदमी से पैसे कम करवाने वाला किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाएगा तो वहां तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, वो 5,000 रुपए का खाना खा लेगा, लेकिन गरीब के 50 रुपए कम करवाएगा। तो ऐसे ना किया करो। इस तरह के मजबूर लोगों से अच्छे दामों में, उनके मनपसंद दामों में चीजें खरीद लिया करें। इनकी खुददारी की इन्हें शाबाश दें कि ये हाथ नहीं फैला रहे, ये अपनी रोजी मेहनत करके कमा रहे। ये देखिए माशाल्लाह इस तरह के लोग किस तरह कमाते हैं, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और यहाँ ये बात भी सीखने को मिली कि किसी के आगे हाथ फैलाना ये शरीयत को पसंद नहीं है। मैं हदीस पाक आपको सुनाता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स माल बढ़ाने के लिए भीख मांगे तो वो अंगारा मांगता है, अब चाहे कम करे या ज्यादा। यानी दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने को अंगारा हाथ में लेने का फरमाया गया। तो अल्लाह करे कि हमें इससे सबक हासिल हो, और इंशाअल्लाह हमारे भाई को अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। इनको क्या तोहफा देंगे फैजान भाई? जी, इनके लिए एक बड़ा प्यारा तोहफा भी है ना। हमारी मजलिस ने नाबीना इस्लामी भाइयों के लिए एक चीज बनाई है, वो क्या है आइए पहले आपको दिखाते हैं। स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी का कामयाबी की तरफ एक और कदम। स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट ला रहा है नाबीना अफराद के लिए आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान मा हाशिया इफ़हामुल कुरान ब्रेल लैंग्वेज में। अब नाबीना अफराद भी कुरान का तर्जमा और हाशिया यानी मुख्तसर वजाहत पढ़ सकेंगे। अभी 30वें पारे पर काम मुकम्मल हो चुका है और अनकरीब मकतबतुल मदीना के बस्ते से आप हासिल कर सकेंगे आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान मा हाशिया इफ़हामुल कुरान ब्रेल लैंग्वेज में। नाजरीन, सच्ची बात यह है कि दावत इस्लामी वाला होने पे फख्र होता है। अल्लाह ने कैसी तहरीक दी है, कौन सा शोबा है जिसको दावत इस्लामी ने नहीं नवाजा। जरा आप गौर करें कि इस शोबे की बरकत से अब इन इस्लामी भाइयों को भी तर्जुमा कुरान और कुरान पाक का यूं समझिए कि मुख्तसर तफसीर भी पढ़ने को मिल जाएगी। ये पढ़ नहीं सकेंगे, ये इसको हाथ लगा के महसूस करेंगे। अब हमें तो नहीं आता, लेकिन इनको आता होगा। ये आपके लिए बड़ा शानदार तोहफा है कि आप इंशाअल्लाह कंजुल इरफान मा इफ़हामुल कुरान ब्रेल लैंग्वेज में जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। जी अब्दुल हबीब भाई, बहुत खुशी हुई। यकीन करें
अब अंडों के साथ साथ आपने मैं ब्रेल में भी कुरान पढ़ सकूंगा चलें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत हाँ, खुशी हुई। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। अच्छा अब जी ये चले जो खुसूसी इस्लाम में दूसरे भी हैं, इनको भी तोहफा देंगे। देखिए ये दीनी माहौल की बरकत है कि ये इनको हाथ पकड़ के उन्होंने रोड क्रॉस कराया। हमें भी अगर कोई ऐसा नाबीना मिल जाए, ऐसा कोई इस्लामी भाई मिले, तो हमें उसका हाथ बटाना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा जनाब, अब आपको तोहफा भी मिल गया, ये तो यहाँ आपको छोड़ गए, अब मैं कहीं आपको छोड़ दूँ? हबीब भाई अब तो यही गुजारिश है कि मुझे मदीने छोड़ दें। अब मुझे जो है ना कुरान का भी आपने तोहफा दे दिया है, और अब मुझे मदीने जाना है। वो एक शेर है ना कि कोई तो आंखें वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतजिर खड़ा हूँ, तैबा के रास्ते में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। बेटा मदीना दूर है, जाना भी ज़रूर है, तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। बड़ी दुआएं मांगी हमने, हम भी तैबा जाएंगे, तैबा जाकर कहना का कब वो हमको बुलाएंगे। बड़ी दुआएं मांगी हमने, हम भी तैबा जाएंगे, तैबा जाकर कहना का कब वो हमको बुलाएंगे। जब वो हमको बुलाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे। जब वो हमको बुलाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे। रो रो हाल सुनाएंगे और मिलकर सब ये सुनाएंगे। तैबा बड़ी दूर आका, तैबा बड़ी दूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आका बुलाएंगे तो आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। आप दुआ करें हम साथ मदीने जाएंगे, साथ जाएंगे इंशाल्लाह। चलें, कल बहुत बहुत शुक्रिया। शबे मिराज है इंशाल्लाह। शबे मिराज के आका को बुलाया है, आका को बुलाया है, आका बोल हमें भी दे तो बुलाएंगे इंशाल्लाह हमें भी जाएंगे। बुलाएंगे इंशाल्लाह। चलें आप इनको साथ लेकर जाएं, चलें माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है दावत इस्लामी की, क्या बात है हमारे इस्लामी भाइयों की। ये हमें सबक दे रहे हैं, आंख वाले सबक दे रहे हैं, बगैर आंख वाले सबक दे रहे हैं कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है। जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन्होंने हमें सबक दिया। अल्लाह करे कि हम इस लेसन को लें और सबक हासिल करें। आइए नाज़रीन देखते हैं हमारा